Yeah, welcome to the new batch of this data engineering course. So I think you guys have already interacted with me, so I will not spend a lot of time about my introduction, but I will just give you uh, kind of one line of summary that my name is Anurag Pandey, and I have around 10 plus years of experience into this data domain. And I will be basically your instructor for the Azure part for this complete data engineering journey. And the Python and SQL will be covered by Vishal Yadav, who is already in call, unmute, so he will take from there. I'll start basically with the way basically I provide training is I follow the complete structure in a kind of top down approach. It means that like we are going to break down the complete data engineering model or complete model into small pieces, and then together we put it back together again. The purpose behind this approach is not only know the tech inside out, but you guys also will have a deep understanding and how everything will fit together. Uh, and the way I start is basically first I will give you kind of theoretical knowledge, not by using any kind of PPT, but at a runtime I will explain you all the topics uh, by giving a proper time, and then you like you guys can ask question in the end of the session. If you have anything very urgent, then you can write down your message in the chat window. Then I will take your questions from there, or I will ask you to unmute if there will be any issue. This is how basically we will be covering everything together. So as this is our first class, so I'll start basically with the prerequisite and what I will be covering in today's session. So in the by end of the today's session, you will have like a complete understanding like what is the big data, this data engineering thing, and the basically the overview of this big data ecosystems and how each what we will be covering and what are the basic characteristics of the data and what is the significance. So I'll start with the prerequisite that our we have like designed our classes in such a way that anyone uh, anyone, if you have a technical background or non-tech background or anything, even if you don't know anything about data, then still you will be able to catch very easily you will be able to understand. And by end of this course I think you guys will have a very good level up if you will be have to complete a understanding of building and production ready data engineering pipeline, end-to-end pipeline you will be able to create it by yourself that we can directly deploy on a production system. And uh, we will not spend a lot of time into the designing PPTs and then going through all topics very deeply, but we will be understanding covering all the topics by the theoretical, understand why and at which point of time we will be using in our project. Then we will uh, switch to the basically the practical side of it. I will try to do the maximum practical in the class at a runtime so that if we get any error, then at least you guys will understand how to resolve the error. But if any topic there is something complicated involved, in that case, I will uh, be creating at my end so that we can save our time, and then I can show you all the steps how I am doing it. Let me share my screen now. Anyone have any kind of questions till now? We will go with Azure or AWS. Uh, we will go with Azure in this course, and with respect to Azure, what services that we have in the AWS that we will be covering. Anurag, later we have talked that we will cover AWS. I think Nikhil is the Vinny, can you person who please know. let me know like if we have to go with AWS or Azure? I think we need. Mhm. eh, Okay. Yeah, Manoj, you want to go for AWS only?
Actually, I know little bit about AWS, or I have used some services. So if we go with Azure, not a problem, but according to the market, we have to move. I think AWS, I see some position. So AWS is good to go. And, like Uh, other Definitely, according to the market, if we'll say about this thing, तो Azure will have a good market in this. तो because क्योंकि Azure पे ही हमें मेन बेसिकली अपॉर्चुनिटीज कंपैरेटिवली ज़्यादा मिल रही हैं. ओके, सो लाइक एजोर तो अपन कंप्लीट करेंगे, एंड इट इज़ गुड, मतलब ये AWS भी साथ में अगर मैं कर लूँगा, सो भाई ये अनुराग ने वही बोला ना, Azure इन डेप्थ कवर अप करेंगे इन रिस्पेक्टिव टू, मतलब मेन बेसिकली जो जो हमारे पास रिस्पेक्टिवली जो जो AWS में सर्विसेज अवेलेबल है वो हम साथ के साथ इसके साथ इंट्रोड्यूस करते रहेंगे. प्रैक्टिकल नहीं है, बट एटलीस्ट थ्योरेटिकल यू विल हैव अ कंप्लीट आइडिया। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे डेटा लेके है तो वहाँ पे S3 बकेट होगा, या हमारे पास ADF है तो वहाँ पे स्टेप फंक्शन होगा। ओके, हाँ, हम ये चीज, जैसे हमारे पास यहाँ पे एजर फंक्शन है तो वहाँ पे लैम्डा फंक्शंस है, तो कंपैरिजन में क्या यूज करते हैं वो चीज का आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, अगर हर कोई बोलता है देन वी कैन गो विद AWS, आई डोंट हैव एनी इश्यूज लाइक। निखिल करके था, आई थिंक उसने AWS का भी, उसने भी एक क्वेश्चंस करा था। ठीक है, देखेंगे अपन। वैसे बेस्ट इंट्रोडक्शन क्लास है तो ऐसे ही करना है, ऐसा कुछ होगा तो हम। निखिल है सेशन में. निखिल, आर यू देयर? Yes, yes, I'm here. So actually ये सीन ये हुआ था कि जो मतलब मैंने जो रिसर्च किया हुआ था कि ज्यादा वैकेंसीज या मतलब कॉल वगैरह AWS के लिए आ रहे थे मेरे को भी, दैट्स व्हाई। तो यही सीन था। थैंक यू। हमें निखिल से मेरा भी डिस्कशन यही हुआ था कि एग्जैक्टली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास मोस्ट ऑफ द जो इंक्वायरीज आ रही है, मतलब मेन बेसिकली जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं वो एज्योर पे कंपैरेटिवली ज्यादा आ रही हैं. हाँ, बट निखिल के पास मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबिलिटी है कि हाँ AWS से ज्यादा कॉल्स आई होंगी, तो दैट इज अ डिफरेंट इशू. स्क्रीन I share my screen. Can anyone confirm like what you are able to see? Is Zoho window or it's Notepad? नॉट पेड। Notepad. Okay. Okay, then let's go with Azure. As per my like experience also, Azure में ज़्यादा jobs हैं अभी in comparison to AWS. AWS में jobs थोड़ी बीच में थी, but अभी सारी organizations जो भी नहीं है सब के सब Azure पे ही move कर रही हैं। तो हाँ, तो मैं भी मतलब मैं, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं कवर कर दूंगा AWS भी साथ। Anurag sir, like, do you need experience to get into like this domain, like 2 years, 3 years? यस, डेटा इंजीनियरिंग में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं वो कभी फ्रेशर नहीं लेते डेटा इंजीनियरिंग पे। तो डेटा How like how many years of experience? एटलीस्ट 3 to 4 आपको देना पड़ेगा, तब So, तब कॉल्स आएंगे। हाँ, आपके बेसिकली क्या होता है, अगर तुम एज अ डेटा एनालिस्ट भी वर्क कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो कुछ लोगों की प्रोफाइल जेनरिक होती है, तो वहाँ पे बोल दिया जाता है कि ठीक है मेरे पास एक्सपीरियंस है 4 years का, क्योंकि जो इंटरव्यू होगा वो 2 साल का हो या 4 साल का हो या 1 साल का हो, सेम ही है, ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि oh, 2 साल में बहुत इजी पूछा जाएगा, 4 साल पे बहुत ज्यादा हार्ड लेवल का इंटरव्यू होगा। oh, तो काम में अब ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद भी अगर तुमने ज्वाइन ही कर लिया ना, तो वहां पे जाके भी कोई नहीं पूछता कि तुम्हारे पास कितना है, वो फिर जो काम होता है सब में डिवाइड होता है। okay. हाँ तो अनुराग, मेरा आपको मैंने बताया था फुल स्टैक है मेरा अभी, लो कोड में। हाँ जी, तो मुझे बेसिक आइडिया तो है सारी चीज़ों का, CI/CD वगैरह जो भी हैं। सो डेटा इंजीनियरिंग में जितना मैंने समझा है कि नॉलेज रहेगा तभी आप अपन एग्जिस्ट कर पाएंगे वहाँ पे। सो हाँ, इट इज़ गुड, फिर अपन की प्रोजेक्ट करें उसमें अच्छे से।
हाँ करेक्ट है, तभी मैंने बोला था कि मैं जो पढ़ाऊंगा ना, सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा थ्योरेटिकल पार्ट पे, मैक्सिमम हम प्रैक्टिकल ही करेंगे, और प्रैक्टिकल हम रन टाइम पे करेंगे, और जो जो टाइम टेकिंग चीज़ होगा, जो रन टाइम पे नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ हम कर लेंगे, वो मैं पहले से प्रिपेयर करूंगा और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कंटिन्यू। Okay, then I think we are good with so first I will start with the roadmap. Roadmap is like all you have, all we basically need in our I think this is also we have covered in the course content that we need has shared with you all, that how, what, and we will be covering. So the first step that I want to show is like even in our discussion I explained that we have to be very strong with our concept with SQL and any of the programming languages. Any of the programming means it can be Java, Scala, or Python. But I will prefer that you guys can go with Python. Python is easy to learn, and the coming future, and even you can see that you will have a lot of jobs in Python from the last 7 to 8 years. Even in the coming future, Python is going to rule the world. Even from last 1 years or 2 years, Python has moved to the second or the third highest using language, but now again it is coming as a top language. So this year 2025 is going to be the year of the Python. The first step is to be very strong with SQL and Python. Then we can go with second step is like we can have an understanding of the data lake, and the data warehousing. And the reason why I have added it is because here you can cover the very latest running tools, that is a Snowflake or Redshift. Snowflake, this is the leading for now. So you will get a lot of job option with the Snowflake, and the Redshift is more to the AWS side. So that is why I will go with the prefer with the Snowflake. And यहाँ पे स्नोफ्लेक का डेटा वेयर हाउस और डेटा लेक का सारे कॉन्सेप्ट we will be covering when we will be going with the SQL and the Python, because in the SQL only you will learn the basics of the SQL queries, where we will be executing, why we will be executing, and the way we create store procedure. Most of the theoretical part you will cover here, but again I have mentioned it as a different points only because of the Snowflake. Third, I can see third is you will have to cover one of the any of the सॉरी अनुराग, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। अभी बेटर है, अभी है ना परफेक्ट। So data, third concept that I can say is mostly it is the cloud provider. It can be anything, it can be Azure or AWS or GCP. I think there are only three that is the leading in the market. And fourth, you can focus on any of the data processing. Any of the data processing framework. It can be Spark or it can be like any like DBT or anything, but most of the jobs and leading market is on the Spark side. So you guys, I think in our course also we are covering the Spark. So if you know the Python, then this Spark will become very easy because we are almost following the same syntax. Only thing that has been added is it will be written as PySpark. PySpark means Spark with Python. So these four is the building blocks and the roadmap for the data engineering journey. This part I think will be covered by Vishal, and maybe after today's class, Vishal will take care and he will be covering this complete part. Then I think after that I will
I will join and then I will start covering this cloud provider and discovering this data lake and data warehousing concepts. Yeah. This is the roadmap. Now I will take one example. And with this example, we will understand what is data engineering and what we will be actually doing in our day-to-day life of data engineering. I think everyone is using mobile phones. I'll take the example of that mobile phone only. So for example, you have a phone. So every day you are using your phone more than 5 hours or 6 hours at any time. Then you are opening your mobile phone, you are going to any applications, you are calling, you are surfing internet. So you are doing n number of things with your phone. In the backend, a logs has been generated in your phone that you wake up at maybe at 8 a.m. Then you have opened WhatsApp, you have checked your emails, then you have after email maybe you have listened to some YouTube songs, and everything will be written as a log in your phone. And if I will have to analyze yourself, you, then what I will do is I will just take that log file. I will put it log file in any of our data in our data lake. From the data lake, I will fetch the required information that I need, because that log will have almost every information what you're using. But maybe I am more focused on what application you are using every day and at what time you are using it. Maybe you're opening YouTube at 10 a.m. Then after that you are going to office. Then you are using Google Map. Then again you're opening YouTube and WhatsApp maybe at 2 p.m. or 3 p.m. So I need that information. So what I will do, I will take the log. I will bring that log and load it into our data lake. Then I will write that SQL logics and Python logics on top of your log files. Then I will be loading your data into our data warehousing, and I will be using a Snowflake or anything to write the logic or the business logic that I need. Logic means the information that I need from that log. For that, I will write something, then I will load that data in maybe in a Power BI or any other reporting, then I can understand what you're doing. So what was the cycle? First, I loaded that data. Before loaded, I think what I did is I have loaded the log file from your phone. And I bring this log file into my data lake. Once I get, then I have applied business logics. Then I get some meaning out of data. Then I have used some reporting tools, or you can say some representation layer to understand what you are actually doing. So this is the end-to-end cycle of any of the data engineering project. In any data engineering project, your first task will be you will be going to the source from where you will be loading the data. That we have merged these two, and we call it as a ETL. We call it a ETL concept. ETL means extraction, transformation, and loading. And in the modern data warehouse, we also represent this ELT. Means we are extracting and loading, and then we are doing the transformations. And this complete, I will cover the tools as well, like how these tools what tools we are using. So this is the kind of flow. First, you have understand the flow of the data engineering project, what you will be doing. Then I will cover the tools. So first is we will be reading, loading it. After loading, then we will be applied the business logics, like writing code. Here you will be writing code, most of the things by using Python or SQL anything. Then this is the data warehousing. We have a reporting tool who works at this layer, who creates a report by using the data that you have loaded by writing the codes. So this last area is used by some other team, but in our case, I think you will have to understand how we are tables are creating. So you can create data. This is a reporting tool. So
what is the flow? If I will create a diagram, then first thing we are doing is we are creating an ETL pipelines. And these complete ETL pipelines is what every data engineers do. He just have to extract data, transform it, and load it. Load it with these three topics. So this is going to be your day-to-day life cycle. And when if I will cover the tools and technologies. So first is basically how we loaded the log file from the phone. For this, there are a lot of ETL tools are available in the market. It can be Tableau, it can be Spark, or it can be some internal like a Glue, and many tools are available. It can be ADF and it can be anything. But the concept is for every tool will be same. Concept is just connect with the source. Its source can be anything, your mobile phone, it can be data, it can be file, it can be IoT devices. So first task is just connect with them, then load the data into data lake or data warehouse. Then after that, you start writing the code. If I will divide it into 3 or 4 parts. So now the next is what is the big what big data tools and framework that we have used for this. First step is this processing part. So we name it as data processing. After processing, we are loading the data. So next is storage of the data, where we are storing it. Then we have to schedule this pipeline. So we call them as a data streaming, you can say. Then last part is the reporting tool. For that, we have data analytics. Some of you guys have worked on the data analytics side, so you must be aware, like we use Power BI or Tableau at this points. For the data processing, we basically use Spark or DBT, and some people use ADF like Azure Data Factory as well for this, like processing and for orchestration both. Storage, it can be if you are using AWS, then you have to load it on S3, or you can load it if it's on-prem, then it can be HDFS. In Azure, we have a data lake Gen 2. For the streaming, we have like Kafka, and next is maybe step function. It can be Flink. So these are basically some of the widely, like mostly used tools and the framework that we have actually we are using in the market these days. Anyone have any question till now, or I can move to the step by step how we actually perform and create a pipeline? Next is basically how तो डेटा एनालिटिक्स वाला पार्ट अपना नहीं रहेगा ना? नहीं हमारा नहीं रहेगा हमारा. द रीजन वाई आई एम एक्सप्लेनिंग इज बिकॉज हमें ये समझना चाहिए कि अल्टीमेटली सब कुछ जब डेटा मर्ज होता है तो क्या बनता है. जैसे माना कि अगर स्मॉल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में अगर हम ब्रेक करें स्मॉल पीसेस में, तो सारे पीसेस क्या होते हैं और ओवरऑल जब हम मर्ज करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होती है पाइपलाइन. इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि हम डेटा का करेंगे क्या.
बट ये हमारे कोर्स में नहीं होगा। हमारा हमारा मेन फोकस जो है वो एक पाइपलाइन क्रिएट करने पे है। पाइपलाइन मतलब ईटीएल पाइपलाइन और समझ सकते हो, या फिर ईएलटी पाइपलाइन। उस पाइपलाइंस में ही हम सब कुछ, वही है हमारा डेटा इंजीनियरिंग। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक कंप्लीट डेटा इंजीनियरिंग की जो जॉब्स होती है, व्हाट दे डू एवरी डे एंड हाउ दे प्लान। So first step is basically we get a requirement, and requirement, it can be in a PDF form or it can be in Excel form. Basically, business creates the requirement and they provide us the requirement in the form of documents. So first what we do is we first understand the document and understand what source system we are using for the data. Source system can be n number of sources, different kind of. It can be a database, maybe it is some IoT devices, maybe we have Excel or text file or CSV file or JSON, XML, APIs. So there are a lot of sources that is available. But in the industries, and if you will go in your interviews, then they can ask you the first question, when before even going to the data engineering, what sources have you used in your project? Because they want to understand what kind of experience do you have to handle or connect with the source. So mostly uses, basically we uses databases as a source. We use APIs. We use XML files, and we use like Excel, CSV. These are the very common. So अनुराग, हमें एपीआई से कौन सी फाइल्स मिलती है, क्या एग्जैक्टली मतलब उसका एक्सटेंशन क्या होता है? एपीएस का एक्सटेंशन, अच्छा एपीएस का एक्सटेंशन क्या होता है? इसके अंदर जो फाइल्स आती है वो जेसन फॉर्मेट्स में होती है, जेसन फॉर्मेट और एक्सएमएल। सो बेसिकली व्हाट दे वांट टू अंडरस्टैंड है कि तुमने जेसन फाइल्स और एक्सएमएल फाइल्स को यूज किया कि नहीं, क्योंकि ये जो फॉर्मेट्स होते हैं वो होते हैं काइंड ऑफ सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। अगर हम समझेंगे ना, तो टाइप ऑफ फाइल्स और टाइप ऑफ डेटा अगर हम समझे, टाइप ऑफ डेटा इज बेसिकली वी हैव a structured data. Structured data, it means we have a data in a row and column format, जैसे Excel है। Excel या जेसन इज सेमी स्ट्रक्चर, राइट? आई थिंक हाँ, तो इसमें मेनली उसका रो का एड्रेस और पूरा डेटा होता है, काइंड ऑफ ऐसा ही होता है ना कुछ? जैसे मैं एक बार दिखा देता हूँ। सिंपल, इसके अंदर की एंड वैल्यू पेयर में इंफॉर्मेशन होती है। की वैल्यू मतलब हमारे पास की होगा, जैसे यहाँ पे की है नेम, उसका इंफॉर्मेशन, एज, कार, ये होते की और ये होता है वैल्यू। अब इसके अंदर जेसन के अंदर और भी आता है, जैसे कि नेस्टेड जेसन। नेस्टेड जेसन में क्या होता है कि कोई की है, की के अंदर एक और की, उसके अंदर एक और की, उसके अंदर इंफॉर्मेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस वन। तो हमारे पास फाइल्स ऐसी आती हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ, एक रियल टाइम एग्जांपल, जैसे मान लो कि मैं काम कर रहा हूँ किसी एयरलाइन कंपनी के लिए। आप गए, आपने अपना बैगेज को चेक इन किया, वहां से जो भी इंफॉर्मेशन चेक हो रही है वो हर इंफॉर्मेशन वो क्या होता है कि डेटाबेस में नहीं डाल सकते, हर चीज का एक्सेल नहीं बन सकता, क्योंकि इंफॉर्मेशन के अंदर इंफॉर्मेशन होती है। मेरा एक बैग है, मेरे पास 4 बैग है। एक मेरा बैग है, वो है समझ लो कि सूट, उसके अंदर ब्लू कलर है, मे बी कोई रेड कलर है, कोई ऐसा बैग आ गया जो स्मॉलर साइज में, कोई बड़ा साइज में है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ये पॉसिबल नहीं है कि मैं किसी डेटाबेस में डाल पाऊँ। तो वहां पे क्या करते हैं, जो फाइल्स और जो जनरेट्स होती है वो एक ऐसे जेसन फॉर्मेट में या एक्सएमएल कह सकते हैं, ऐसे कुछ डेटा जनरेट होता है जहाँ पे की के अंदर इंफॉर्मेशन, इसके अंदर इंफॉर्मेशन, इसके अंदर इंफॉर्मेशन होता है। जैसे बेटर के अंदर आईडी आ गया, यहाँ पे ये सारा इंफॉर्मेशन आता है जिसे हम बोलते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन। और ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। और हमारे डेटा इंजीनियरिंग में ऐसे समझो कि मैक्सिमम जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो आते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड वाले डेटा में, और हर जगह ये सबसे ज्यादा जनरेट होता है, क्योंकि एक्सेल हो गया, टेक्स्ट फाइल होता है, इनका एक लिमिट होता है। तो वो
बिग डेटा में बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हैं। सबसे ज्यादा यूज होता है XML, APIs और JSONs। तभी मैंने यहाँ पे अलग से मैंने कवर किया कि कौन कौन सा सोर्स सिस्टम है। और ये सोर्स सिस्टम पे समझ लो सबसे पहला इंटरव्यूज स्टार्ट होता है कि व्हाट काइंड ऑफ सोर्सेज दैट यू गाइस हैव यूज्ड। ठीक है, तो हम जाते हैं डेटाबेसेस पे, फिर JSONs हो गए, APIs हो गए, देन वी हैव MongoDB में JSON फाइल फॉर्मेट के अंदर डेटाबेस सेव होता है ना, राइट? हाँ, कोई भी NoSQL होता है, NoSQL के अंदर ऐसे ही होता है, की वैल्यू पेयर में सेव होता है, क्योंकि वहां पे फिक्स नहीं होता कि मेरे पास 4 कॉलम आएगा या 5 कॉलम आएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन आ सकती है। तो वहां पे हम ऐसी सेमी स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, सेम ही होता है XML फाइल्स में। XML फाइल सिमिलर होती है JSON फाइल में, इसमें थोड़ा माइनर सा डिफरेंस होता है। देन वी हैव Excel एंड CSV फाइल्स। तो बस इतना ही आप लोगों को रेडी कर लेना फॉर द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं वो JSON और XML से होते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन जनरेट होते हैं कि वो बोलते हैं कि तुमने XML फाइल को या API फाइल को रीड कैसे किया था, क्योंकि हमारे जो सबसे पहला स्टेप होता है हमारे ETL जर्नी का या हमारे डेटा इंजीनियरिंग का, वो ये होता है कि हम सोर्स को रीड करते हैं। ये हम सबसे पहले हमने डेटा को जब लोड करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था फोन का, जब फोन का डेटा हम लोड करेंगे सबसे पहले हमें उस डेटा को रीड करना पड़ेगा। रीड करने के लिए या तो हम पाइथन लिखेंगे या फिर हम लिखेंगे SQL का कोड। तो उनका सबसे पहले क्वेश्चन इसी स्टार्ट था, तुमने कौन से वे में इस डेटा को रीड किया था? क्या तुमने पाइथन लिखा था? अगर पाइथन लिखा था, तुम पाइथन से JSON फाइल को कैसे रीड करोगे? व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर दैट? हाउ यू हैव यूज्ड इट? डिड यू फाइंड एनी काइंड ऑफ they can ask the common errors. What kind of common errors that you have got when you were reading a JSON file by using Python or by using SQL? ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सोर्सेज जब हम एक बार आप लोग पाइथन पढ़ रहे हो पहले, वहां से जब हम एक बार इंटरव्यू क्वेश्चन कवर करेंगे, तब उस टाइम पे मैं एक एक जो भी फॉर्मेट है सब पे कॉमन एरर क्या क्या आते हैं, उसको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं, कैसे रीड करते हैं, उसका मैं एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो वैसे मुझे लग रहा है पाइथन में सारा कुछ कवर हो जाएगा। अनुराग, आप ये कह रहे हो कि हम स्पार्क में SQL भी लिख सकते हैं, राइट? मतलब स्पार्क के जरिए हम SQL भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं यस यस फाइल रीड करने के लिए। यस यस, वी कैन डू दैट। स्पार्क पे मैंने स्पार्क को यहाँ पे लास्ट में रखा हुआ है। स्पार्क पे मैं करूंगा डिस्कस। स्पार्क में एक डिटेल्ड लेक्चर चाहिए होगा स्पार्क कवर करने के लिए, बिकॉज देयर आर 4 or 5 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस दैट आर सपोर्टेड बाय स्पार्क। इट कैन बी जावा, इट कैन बी स्केला, इट कैन बी Python, it can be SQL. Any APIs can be used for reading, for actually working on the Spark. उसको हम बोलते हैं Spark SQL, PySpark और Spark with Scala। ये तो हम कवर करेंगे। अभी मैं एक एक करके जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया बिग डेटा टूल्स का, मैं एक एक पार्ट्स को भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हम तो बस PySpark ही कवर करने वाले हैं। बट स्पार्क SQL ऐसा नहीं है। जब आप PySpark कवर करोगे एट द सेम टाइम यू कैन यूज स्पार्क SQL एज वेल, बिकॉज जो तुमने कोर्स में पढ़ा होगा यहाँ पे SQL भी पढ़ा होगा। तो स्पार्क SQL में ऐसा कुछ नहीं होता कि हम बहुत कुछ डिफरेंट करते हैं। सेम SQL की क्वेरी हम एग्जीक्यूट करते हैं स्पार्क के लिए। सेम SQL, बस क्या होता है एक सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो PySpark जब पढ़ोगे ना तो उस टाइम पे ही कवर करेंगे। तो ये समझ लो कि PySpark स्पार्क SQL तुम दोनों ही कवर करोगे अपने इसमें कोर्स में, नॉट ओनली PySpark। SQL से फाइल कैसे रीड करते हैं बेसिकली? सॉरी, कौन सी फाइल? SQL से हम फाइल रीड कैसे करेंगे? मतलब जो इनपुट फाइल रहेगा CSV या XML कौन सा भी होगा, बेसिकली हम स्पार्क सेशन में जाकर वहाँ पे SQL एग्जीक्यूट करेंगे, राइट? हाँ, स्पार्क बेसिकली क्या होता है, SQL के अंदर उनके लाइब्रेरीज और उनके साथ उनके फंक्शंस होते हैं। वो फंक्शंस रीड करके और फिर हम जैसे फाइल लोड हो गया, तुम्हारा लोड हो गया मान लो डेटा लेक पे, डेटा लेक हो गया, उसके बाद तुम उसका कुछ भी डेटा फ्रेम या कुछ भी बना दोगे। डेटा फ्रेम तुमने बना दिया, उस डेटा फ्रेम के बाद तुम्हें इस पे स्पार्क SQL की क्वेरी लिखनी पड़ेगी, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। फिर उस क्वेरी को तुम एग्जीक्यूट करोगे ऑन टॉप ऑफ दैट डेटा फ्रेम। उसका सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स ऐसा होता है कि वी क्रिएट अ टेम्पररी टेबल्स
by using the data set created. उसके ऊपर फिर तुम सेट स्टार चलाओगे तो स्पार्क क्या होता है, बैकएंड में स्पार्क उस तुम्हारे क्वेरी को कन्वर्ट कर देता है मे बी स्केला के अंदर लिखा होता है, तो उस स्केला के अंदर कन्वर्ट करके वो हम तो टाइप कर रहे होते स्पार्क सिक्वल, बट स्पार्क उसको कंसिडर करता है एज ए स्केला लैंग्वेज, फिर उसको एग्जीक्यूट करके फिर हमें उसका रिजल्ट देता है। ये भी बेसिकली बैकएंड लैंग्वेज जावा रहेगा इसलिए। जावा नहीं, स्केला स्केला के ऊपर बिल्ड है कंप्लीट स्पार्क। स्केला तो जावा में ही रहता है ना, स्केला मतलब जावा में ही वो कोड है ना स्केला का। जावा इज डिफरेंट, स्केला इज डिफरेंट। डिफरेंट है दोनों। ओके इवन सबसे अंडररेटेड लैंग्वेज स्केला इज मोर पावरफुल देन जावा, बट उसकी अच्छी से मार्केटिंग नहीं हो पाई तो वो उतना चला नहीं। सिंटेक्स बहुत खतरनाक है उसका। हाँ, ये ना क्योंकि वो बहुत ज्यादा इवॉल्व नहीं हुआ, वो अब एक्चुअली बिग डेटा आ गया तो यूज होने लगा, नहीं तो फिर एकदम खत्म हो गया था। स्केला को यूज नहीं करता था, जावा ही ज्यादा यूज होता था, बट इस स्केला इज मोर पावरफुल देन जावा। ये हमारा रहा सोर्सेस, क्या कहते हैं। So we were discussing the day-to-day life, right? So first you will get a requirement. I was covering. Then after you got the requirement, then you will understand the source, what kind of source that we have. Based on the sources and the data, you will be basically interacting with this. Then you will go to the data architect, because the data architect will be basically designing the pipeline. In the bigger organization, we have a data architect as a different profile who basically create or design the pipeline. But as a data engineers also, like you will also have to design it at some point or at some level. Maybe you don't have a data architect, then you will be basically designing it. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे इंटरव्यू स्टार्ट होता है सबसे पहले पूछते हैं कि एज अ डेटा इंजीनियर तुमने डे टू डे क्या करते थे या फिर कैसे तुमने डेवलपमेंट किया है। तो वहाँ पे सबको बताना पड़ता है कि वी गॉट अवर रिक्वायरमेंट in a form of ticket or user story. Then in that requirement we have a document attached. Then I was going through the document and I was understanding what needs to be created. Then after that I was analyzing the sources what we have. Then after that I interacted with a data architect who will be providing me the design basically. Designing, or you can mention that I create basically one design of end-to-end flow, what I have to do. Once you have, then you start your development. Once the development is completed, then you will be using a GitHub or any of the code repository. By using that, you will be pushing your changes from one environment to other. Before that, you can say that we work on unit testing. Once everything is done, then we do deployment of code, environment, using CI, CD, pipeline. Yeah, so this is the end-to-end activities that you will be providing. First is like sources. We have already covered what kind of sources that we have. How we are reading it, we will cover it in the course of Python, SQL, or when we will going with the Spark. Next is data architect. They will be providing design. But what is this design? What is this? I will show you one of the design.
you can pick any of it. For example, this one. Yeah, this. So this is the design that we say that what we have done. So for example, you have a API as a data source. After that, you will have to use Azure Data Factory. ठीक है, अभी समझ में नहीं आएगा सब क्या होता है, बट अभी इग्नोर करो. बट एटलीस्ट ये समझो कि कैसे हम एक डिजाइन करते हैं एंड टू एंड फ्लो को. हमने यहाँ पे एक टूल यूज किया दैट इज कॉल्ड Azure Data Factory. Then we loaded data into our data storage, like in our raw layer. Then on top of it, we are running a Spark job. It's called Databricks Spark. Then we are using the Databricks Spark to do the transformation. Then we are loading it into our final layer. Then after that, we are going to the reporting, the Power BI reporting. अब इसको तुम वापस से जो मैंने एग्जांपल दिया था फोन का, उससे कंपेयर करोगे. मेरे पास ये फोन है, फोन से मैंने डेटा को अपने लोड कर लिया by using Azure Data Factory in our data lake. जैसे हमारे पास डेटा लेक पे आ गया, फिर मैंने उसके ऊपर पाइथन का कोड लिखा. ये चेक किया कि तुमने कौन कौन से टाइम पे, पहले मैंने सारे एप्लीकेशन का लिस्ट निकाल लिया कि तुम कितने एप्लीकेशन यूज करो अपने फोन में, कौन कौन से टाइम पे कैसे करो, उसको मैंने ऑर्डर बाय कर लिया. हर एप्लीकेशन को तुमने कितने देर पे यूज किया है, वो सारे लॉजिक्स मैंने नोट डाउन कर लिया पाइथन का कोड लिख के. फिर उस डेटा को मैंने लोड कर दिया. फिर मैंने क्या किया, पावर बीआई का उसके ऊपर एक रिपोर्ट बना लिया या टैब्लो का रिपोर्ट बना लिया. और कुछ मैंने ऐसा विजुअलाइजेशन बना लिया जिससे मैं जी समझ सकता हूँ, मतलब तुम्हारा पूरा फोन के कितने भी यूजेस हैं. ठीक है, तो ये कंप्लीट चीज बनाने के लिए जो डिजाइन होता है उसको हम बोलते हैं पाइपलाइन डिजाइनिंग. इसके लिए एक अलग से प्रोफाइल होती है. वापस हम बोल रहा हूँ, डेटा आर्किटेक्ट वो काम करते हैं, बट हर ऑर्गेनाइजेशन में डेटा आर्किटेक्ट नहीं होते हैं. सो और इंटरव्यूज में हमेशा बोला जाता है कि आई नो हाउ टू डिजाइन, आई हैव वर्कड ऑन द डिजाइनिंग लेयर एज वेल. इट विल ऐड एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ लाइक trust on you that I have worked with the data analytics. Then you start doing the development. Development means how you will do the development. First, you will go on the, as per your design, you will create a Azure Data Factory. अभी मैं Azure का पार्ट कवर कर लूंगा, तब मैं बताऊंगा कैसे कैसे के कंपोनेंट्स को हम डिजाइन करते हैं. हाउ वी विल यूज बेसिकली Azure टू गेट इट. सबसे पहले मैंने Azure Data Factory लिया, इसके अंदर मैंने सोर्स को कनेक्ट कर दिया. सोर्स को कनेक्ट कर दिया. फिर सोर्स को कनेक्ट करने के बाद मैंने इसको कंपोनेंट्स को यूज करके डेटा को मैंने लोड कर दिया. कहता हूँ इस डेवलपमेंट में मैंने सबसे पहले सोर्स को कनेक्ट कर लिया. अब मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे आपको फ्लो बताया था. सबसे पहले डेटा को मैंने लोड कर लिया. फिर उसके बाद लोड करने के बाद वो मैं डेटा आएगा या तो डेटा लेक में या डेटा वेयर हाउसिंग पे. फिर मैंने उसके ऊपर कोड लिखा. वो कोड मैंने लिखा है यहाँ पे बाय यूजिंग स्पार्क. फिर उसके बाद जब कोड मैंने लिख दिया, फिर उसके बाद मैंने उस डेटा को लोड कर दिया किसी रिपोर्टिंग पे. उसके लिए हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है पावर बीआई. तो ये होता है एंड टू एंड फ्लो. यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चंस, या फिर मैं मूव करूँ एज़्योर पार्ट पे. काफका भी अपन कवर करेंगे क्या? अगर कोर्स में है तो यस, वी विल कवर दैट. ओके, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग, डेटा स्ट्रीमिंग के लिए तो काफका ही यूज करते हैं बेसिकली. यस यस, वो आप कवर कर लेंगे कोर्स में होगा तो. एक बार मैं देख लूंगा विनीत के साथ. वैसे भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इतना मैटर नहीं करता. मैटर हमारा करेगा कि आप लोग कितने बेटर वे में ये तीन कंपोनेंट कवर करते हो. SQL पाइथन, अगर पाइथन और SQL पे अच्छा हो गया कमांड, उसके बाद तो काफका वाफका जो भी है सब के अंदर कोड वही लिखना है पाइथन का. और जब हम कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, स्पार्क को या कोई भी कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे, जैसे स्नोफ्लेक कोई कवर करेंगे ना, तो वही कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट यूज होगा. मे बी थोड़ा लैंग्वेज चेंज होगा, बस कॉन्सेप्ट वही यूज होना है. या तो काफका यूज करो या फिर एज्योर फंक्शन में भी यूज होता है, उसमें एज्योर में वो यूज करो, कोई भी यूज करो तो वो हो जाएगा कवर, कोई टेंशन नहीं है. बट ये ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में जब तुम SQL और पाइथन पढ़ोगे तो उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लेना. नहीं तो जब भी तुम एज्योर और AWS पढ़ने बैठोगे, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होगी. और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हें स्पार्क में. और डेटा इंजीनियरिंग, स्पार्क और ये तीन कंपोनेंट्स के बिना
टोटली इनकम्प्लीट। जब तुम इंटरव्यू देने जाओगे तो स्टार्ट होगा तुम्हारा क्वेश्चन बाय यूजिंग पाइथन, फिर वो तुरंत मूव करेंगे एज्योर पे, और फिर वो मूव करेंगे स्पार्क पे। ओके। मैं आपको लोगों को लेकर चलूंगा एज्योर पे कि व्हाट इज एज्योर और हम कैसे एज्योर यूज करते हैं। बिफोर दैट मैं एक बार डेटा इंजीनियरिंग को थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ इन टर्म ऑफ क्लाउड एंड इन टर्म ऑफ ऑन प्रेम। So before this introduction of cloud, AWS or Azure, like we were using this complete data engineering stuff on the on-prem. On-prem means we were using this Hadoop concept. Hadoop में क्या होता था? We have a different machines and we don't have a cloud, so we were doing this complete installation on a machine. That machine was basically hosted inside the organization, inside the company. जैसे कि एग्जांपल ले लो कोई कंपनी का, फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग फॉर हेवेल्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, तुम हेवेल्स में गए तो अब हेवेल्स को बिग डेटा करना है, उनके पास क्लाउड ऑप्शन नहीं है, तो वो खुद मशीन अपना परचेज करके और मशीन को खुद हेवेल्स की कंपनीज के अंदर वो इंस्टॉल करते थे, और उसके ऊपर फिर हमारा प्रोसेसिंग चलता था। इसलिए हम उसको बोलते थे ऑन प्रेम क्योंकि वो प्रीमाइसेस के अंदर होता था मशीन। तो उस टाइम पे चलता था जो कॉन्सेप्ट था वो होता था हडूप का कॉन्सेप्ट। हडूप वर्ड अब नॉर्मली इंटरव्यूज में कोई पूछेगा नहीं, बट ऐसे पूछ सकते हैं कि लाइक डिड यू गेट अ चांस टू वर्क विद हडूप और नॉट, ये बोल सकते हो कि नहीं आई हैव ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज बट आई हैव नेवर वर्कड ऑन हडूप। तो हडूप के अंदर क्या होता था, डेटा को हम डिवाइड करके मल्टीपल मशीन्स पे रखते थे, और इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट होता था प्रोसेसिंग करने का, उस कॉन्सेप्ट को बोलते थे मैप रिड्यूस कॉन्सेप्ट। ये मैप रिड्यूस चलता था कंप्लीट जावा के ऊपर। जब सबसे पहले बिग डेटा हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था तो यहाँ पे जावा बहुत ज्यादा यूज होता था, ठीक है। और इसके अंदर जब हम मैप रिड्यूस से हम डेटा को प्रोसेस करते थे, और हाइव हम यूज करते थे एज अ डेटा वेयर हाउसिंग। डेटा वेयर हाउसिंग अभी भी इंटरव्यूज में हाइव पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि हाइव का जो डेटा वेयर हाउसिंग आ गया, इसके अंदर जो लैंग्वेज होता है वो सिमिलर टू सिक्वल होता है, इसको हम बोल देते हैं हाइव सिक्वल। अभी भी कंपनीज क्लाउड पे तो मूव कर गई हैं, बट अभी भी कंपनीज क्या होता है हाइव यूज करती हैं, मैक्सिमम कंपनी हाइव यूज करती है, बट क्या होता है वो क्लाउड के ऊपर हाइव यूज करते हैं। हाइव कभी भी कोई हाइव कोई बोले तो आपको ये पता है कि सिक्वल ही है, बस थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज होता है, प्लस बैकएंड में हाइव के अंदर जो डेटा होता था वो कैसे रखते हैं वो चेंज होता है। इसके अंदर हम एक्सटर्नल टेबल्स क्रिएट किया करते थे और डेटा मूव नहीं करते थे, इसके अंदर एक स्कीमा का कॉन्सेप्ट होता था। वो सारा कॉन्सेप्ट अब हम नहीं पढ़ेंगे अभी क्लाउड में, ना कहीं क्लाउड में होता है, बट ये याद रखना है कि सिक्वल ही यूज करते थे। तो ये बोल सकते हैं हाँ मेरे पास क्लाउड हाइव एक्सपोजर है। सेम काम अब हम करते हैं एज़्योर में। तो अब मैं एज़्योर के ना टॉप कंपोनेंट्स में कवर करूंगा कि कौन कौन से सबसे ज्यादा डेटा इंजीनियरिंग में कौन कौन से कंपोनेंट हम यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है दैट इज कॉल्ड एडीएफ। एडीएफ को कह सकते हो वी यूज इट एज अ डेटा ऑर्केस्ट्रेशन, और डेटा इसके अंदर डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस भी हो जाते हैं एक लेवल तक, बट ड्रैग एंड ड्रॉप करके होता है, बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक्स नहीं लिख सकते, बट हाँ इट इज पॉसिबल, वी कैन डू दैट। अब इसका एग्जांपल समझो फोन से अगर हमें डेटा लेकर आना है, तो जो टूल हम यूज करके तुम्हारे फोन से डेटा के लॉग फाइल्स को मैं लोड करूंगा अपने डेटा लेक पे, वो टूल जो यूज होता है दैट टूल इज कॉल्ड एडीएफ, दैट इज एज़्योर डेटा फैक्ट्री। एज़्योर डेटा फैक्ट्री इस टाइम पे सबसे ज्यादा यूज होने वाला है एज़्योर के अंदर। वाई? कितने भी टाइप के सोर्सेज हो, मतलब समझ लो कि n नंबर सोर्सेज है, सब कुछ कनेक्ट हो सकता है बाय यूजिंग एडीएफ। AWS में S3 रहेगा कि नहीं ADF अलग है? नहीं, एडीएफ अलग है। S3 तो डेटा लिख हो गया, उसमें होता है स्टेप फंक्शन यूज होता है, बट स्टेप फंक्शन सिर्फ ऑर्केस्ट्रेशन के लिए यूज होता है। तो इसके पहले में क्या बोल सकते हो, हाँ ग्लू यूज होता है। ओके, तो वो AWS पे ग्लू और यहाँ पे AWS ADF। का ETL टूल है वो।
सॉरी विनीत, AWS के ETL टूल जो है वो ग्लू है। ग्लू है, हाँ ग्लू होता है, बट इसके अंदर ऑर्केस्ट्रेट, इसके अंदर ना वर्क फ्लो भी क्रिएट होता है, पाइपलाइन क्रिएट होती है, जो कि ग्लू में नहीं पॉसिबल। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, स्टेप फंक्शन यूज करते हैं एडब्ल्यूएस में। हम स्टेप फंक्शन के अंदर ग्लू के जॉब्स को शेड्यूल करते हैं, वो सारा काम एडीएफ में एक ही टूल्स के अंदर हो जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि वहां जाके दो टूल होता है, ग्लू प्लस स्टेप फंक्शन, यहाँ पे अकेले एडीएफ है। ठीक है, तो एडीएफ हो गया एज़्योर डेटा फैक्ट्री, जो कि है तुम्हारा ऑर्केस्ट्रेशन और वर्कफ्लो टूल। नेक्स्ट इज डेटाब्रिक्स। ऑर्केस्ट्रेशन को आप डिस्क्राइब करेंगे क्या थोड़ा, क्या है वो, क्योंकि वो वर्ड ही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऑर्केस्ट्रेशन मतलब ऐसे समझो कि डेटा को हम ऑर्केस्ट्रेट, मतलब किस वे में डेटा को लोड करके और कैसे हम इसको शेड्यूल करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूं कि हर रोज एट 2 AM ऑफ टाइम अपने आप मेरी कोई पाइपलाइन ट्रिगर हो, वो पाइपलाइन जाए सोर्स डेटा पे, वो फाइल को रीड करे, रीड करके लाके उस फाइल को सेव कर दे किसी लोकेशन पे। उस लोकेशन के बाद कोई जॉब्स चल रही है, वो जॉब चले, फिर अगेन वो जॉब जब कंप्लीट तो फिर से मेरा नेक्स्ट जॉब ट्रिगर हो, वो जॉब ट्रिगर होके उस फाइल को लेकर और आगे जाके मे बी उसको रिपोर्टिंग लेयर पे जाके उस डेटा को पुट कर देता। वो जो कंप्लीट साइकिल जो बनी है ना, उसको शेड्यूल करने के लिए स्टेप्स हमें डिसाइड करने, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, फिर एक टाइम डिसाइड होगा। उस सारी चीज को हम ऑर्केस्ट्रेशन बोलते हैं कि हाउ इट विल ऑर्केस्ट्रेट, दैट इज द ऑर्केस्ट्रेशन पार्ट। नेक्स्ट इज डेटाब्रिक्स। डेटाब्रिक्स इज द स्पार्क। ये समझ लो कि ये बैकबोन है डेटाब्रिक्स, हमारे डेटा इंजीनियरिंग पूरे फील्ड का। डेटा इंजीनियरिंग मतलब स्पार्क। स्पार्क इज द स्पार्क इज प्रेजेंट, स्पार्क इज द फ्यूचर। स्पार्क अगर जिसने भी सीख लिया है इस टाइम पे, या जो भी सीखे अगले वो 10 सालों तक कहीं भी नहीं आएगा, कि हर कंपनीज अब स्पार्क यूज कर रही है। और अभी स्पार्क का कोई भी अल्टरनेट अभी मार्केट में ना आया है, ना आगे भी आने वाला है, क्योंकि स्पार्क कैन डू एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन्स कितना भी कॉम्प्लिकेटेड डेटा हो, कितना भी बड़ा डेटा हो, वो बिग डेटा हो, स्मॉल डेटा हो, डेटा के अंदर कितनी भी लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी हो, कि किस भी वे में हमें ऑर्केस्ट्रेट करना हो, प्लस उस डेटा में जैसे कि वो रियल टाइम डेटा है या बैच प्रोसेसिंग का डेटा है, किसी भी टाइप का डेटा होगा, हर कुछ पॉसिबल है इनसाइड अ सिंगल टूल कॉल स्पार्क। पहले क्या होता था, अगर मैं आज से 10 साल पहले जाऊं तो हमारे पास समझ लो कि 50 से ज्यादा टूल्स हुआ करते थे एक काम को करने के लिए, एक एक चीज के। जैसे कि हडूप होता था, हडूप के अंदर मैप रिड्यूस होता था। मैप रिड्यूस का सिर्फ एक काम था कि मुझे सिर्फ डेटा को प्रोसेस करना है, उस बेसिकली उस पे जो रूल्स लगाने वो लगाना है। उसके बाद अगर रियल टाइम स्ट्रीमिंग करनी है तो वो हडूप के अंदर पॉसिबल नहीं था, उसके लिए हम कोई और टूल यूज करते थे। फिर क्या हुआ, मुझे जावा नहीं आता, ठीक है, तब बट मुझे फिर भी बिग डेटा पे काम करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, हाइव। अब हाइव क्या है, हाइव इज अ डिफरेंट थिंग, एक नया टूल आ गया। ऐसे से करके जू कीपर, ऐसे करके 50 टूल्स का कॉम्बिनेशन पहले चलता था। तो सारे सारे टूल्स को कंबाइन करके जिस चीज को बनाया गया, दैट इज कॉल्ड स्पार्क। स्पार्क के अंदर कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, बैच प्रोसेसिंग के साथ साथ इसमें रियल टाइम प्रोसेसिंग भी पॉसिबल है। बहुत बड़ा साइज का डेटा है तो इसके अंदर, अब इसके अंदर पूरा डेटा वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट भी वो मर्ज हो गया है। अब डेटा वेयर हाउसिंग के लिए अलग से कोई टूल नहीं चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था कि स्नोफ्लेक हो गया, रेडशिफ्ट हो गया, ये सारा काम अब इनसाइड स्पार्क हो सकता है। एक पूरा एक प्लेटफॉर्म इन्होंने मर्ज करके बना दिया, डेटाबेस प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो स्पार्क इज द फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड द डेटाबेस। डेटाबेस का ये कह सकते कंपनी है जिसने स्पार्क बनाया है, उस कंपनी का नाम है डेटाबेस कंपनी। तो एज़्योर ने क्या किया, डेटाबेस कंपनी को डायरेक्ट अपने एज़्योर में लिंक कर दिया हुआ है। स्पार्क का पूरा काम ये डेटाबेस पर रिडायरेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज सिनैप्स एनालिटिक्स। सिनैप्स एनालिटिक्स कह सकते हो कि डेटा वेयर हाउसिंग का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारे डेटा एज़्योर के अंदर चलता है, वो चलता है सिनैप्स एनालिटिक्स। इसी के अंदर तुम्हारे SQL के डेटाबेसेस होते हैं।
और भी बहुत सारी चीजें आती है लाइक एज्योर फंक्शंस, और इवेंट हब आता है, एक इवेंट हब आता है फॉर द नियर रियल टाइम प्रोसेसिंग। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया एयरलाइन का, तो एयरलाइन का होता है कि हमेशा जैसे बैग चेकिंग होते ही थोड़ी देर बाद देखोगे, तुम चाहो तो उनकी वेबसाइट पे जाके अपने बैग का इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, तो वो नियर रियल टाइम पे चल रहा है। तो वो डेटा कैसे आएगा डेटाबेस के अंदर, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, तो वहाँ बैकएंड में इवेंट हब चल रहा होता है। वो ऑलमोस्ट इसके ऊपर 10-10 या 15-15 मिनट के बाद डेटा को रीड करके वो फाइल्स लोड कर देता है डेटा लेक के अंदर। ये सारा काम इवेंट्स हब में होता है। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे टूल्स हैं, बट हमारा जो फोकस होगा डेटा इंजीनियरिंग में वो होगा एडीएफ। अगर तुम एज्योर के ऊपर जॉब लेने जा रहे हो तो समझ लो कि 50% क्वेश्चन तुम्हारे इसी टॉपिक पे आने हैं, 50% इस पे आएगा और 40% तुम्हारे स्पार्क पे आएंगे, उसके बाद 10% के अंदर ये सारी चीजें आती है। ईडीएफ और डेटाबेस पे हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे एज्योर के अंदर। ये सर्विस का नाम है सिनेप्स एनालिटिक्स हाँ जी एजोर की। हाँ, और AWS में क्या रहेगा, ये RDS रहता है क्या AWS में? AWS में रेडशिफ्ट भी है, आरडीएस भी है, और ये एक तरीके से इन्होंने क्या किया ना, मॉडर्न डेटा वेयरहाउसिंग कंपनी इसके अंदर अंदर सब कुछ मर्ज कर दिया है। सिनैप्स साइंटिस्ट के अंदर भी इन्होंने एडीएफ को डाल दिया है, तो इससे क्या होगा, एक तुम्हें वर्क स्पेस मिल जाता है, और उस वर्क स्पेस के अंदर तुम लॉग इन करके कोई भी सर्विस को एक कह सकते हो कि जैसे डैशबोर्ड टाइप में एक्सेस कर सकते हो। डैशबोर्ड हो गया, वहीं पे क्लिक करोगे तो एडीएफ ओपन कर देगा, वहीं पे क्लिक करोगे तो डेटाबेस ओपन कर देगा, वहीं पे क्लिक करोगे तो डेटाबेस भी ओपन कर देगा। तो एक ये कह सकते हैं कि नया वर्क स्पेस है जिसके अंदर डेटा वेयर हाउसिंग का पूरा कॉन्सेप्ट चलता है। ओके। और ये फंक्शन जो आपने लिखे हैं ये बेसिकली लैम्डा रहेंगे या ये एज़्योर फंक्शंस होता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ, यस, एडब्ल्यूएस में इसको बोलते हैं लैम्डा फंक्शंस, करेक्ट। ठीक है। और इवेंट हब इवेंट ट्रिगर्स टाइप कुछ रहता नहीं, होगा उसके शायद। अंदर होता है काइनेसिस, काइनेसिस डेटा स्ट्रीम होता है। ओके ठीक है। अब मैं ओपन करता हूँ एज़्योर पे, मैं लॉग इन कर लेता हूँ। ये हो गया लॉग इन। ये होता है एज़्योर पोर्टल का अपना होम पेज, दैट इज कॉल्ड portal.azure.com। अब इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आप समझ लो कि अपने फोन पे अमेजोन की वेबसाइट चला रहे हो, अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट मान लो। कितना आसान है कि तुम्हें जो भी चाहिए तुम गए एप्लीकेशन में, तुमने उसको ओपन किया, तुमने ऑर्डर किया और हो गया। पहले क्या होता था, एक वेयर हाउस सेटअप करना इतना टफ होता था आज से कुछ साल पहले, कि अगर किसी कंपनी को एक 500 जीबी का डेटा वेयर हाउस सेटअप करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको एक रूम चाहिए, सर्वर रूम। वो सर्वर रूम सेटअप करेगा, उसके अंदर मशीन्स खरीदेगा, फिर हार्ड डिस्क खरीदेगा, हार्ड डिस्क लगाएगा, उसके बाद सर्वर रूम को मेंटेन करने के लिए उसे 24 आवर एसी चलाना पड़ेगा, और उसके लिए उसकी हायरिंग करनी पड़ेगी डेवलपर्स की जो उसको मैनेज करेंगे, फिर उसके बाद एडमिन चाहिए, फिर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था किसी भी एक चीज को सेटअप करने के लिए। फिर आया क्लाउड। क्लाउड में सब कुछ इजी है, इट इज लाइक योर फ्लिपकार्ट वेबसाइट। तुम्हें जो चाहिए तुम गए वहां पे, तुमने सर्च किया, तुमने ऑर्डर किया। फॉर एग्जाम्पल मुझे आई मन के काम करता हूँ मैं स्पार्क, या फिर मैं 200 जीबी का डेटा वेयर हाउस सेटअप कर लेता हूँ। मैं क्या करूंगा, मैंने लॉग इन किया, मैं इसके अंदर गया, मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया, जैसे कि SQL डेटा डेटाबेस, मैंने इसको ओपन किया, मैंने यहाँ पे ऑप्शन पे किया क्रिएट SQL डेटाबेसेस। बस मैंने यहाँ पे अपना वो सब्सक्रिप्शन था, जब हम एज़्योर को डिटेल में पढ़ेंगे तो बता दूंगा सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब कुछ मैंने वो प्रोवाइड किया। मैंने डेटाबेस का नाम दिया, फॉर एग्जांपल माय न्यू डेटाबेस, मैंने उसका नाम दिया, मैंने उसका सर्वर डिसाइड किया कैसे सर्वर रखना है, मैंने क्रिएट किया। वो सर्वर मेरा डेवलपमेंट होगा, प्रोडक्शन होगा, मैंने सेटअप किया, मेरा डेटाबेस रेडी हो गया 5 मिनट के अंदर अंदर। जो काम पहले इतने महीनों का होता था वो अब से 5 मिनट के अंदर हो सकता है। सेम वे में हम कुछ भी कर सकते हैं ऑर्डर, मतलब जैसे फ्लिपकार्ट है, कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर सकते हो, उसके अंदर ग्रोसरीज भी हो सकते, कुछ भी ऐसे इसके अंदर भी। इसके अंदर CI/CD पाइपलाइंस हो, डेवऑप्स हो, कुबरनेटिस हो, AI की सर्विसेज हो,
या फिर एडीएफ हो, ट्राक हो, मतलब डेटाबेस हो, कुछ भी हो, सब बस जाओ, सर्च करो, क्रिएट करो और यूज करो, इतना है। प्लस ये इंटरनली आपस में इंटरलिंक्ड होती है, तो किसी भी टूल को किसी और टूल से कनेक्ट करना पड़ेगा तो ये बहुत इजी है। जैसे कि मेरे एडीएफ को कनेक्ट करना है डेटाबेस से, जैसे हमने यहाँ पे जो एग्जांपल देखा था, जैसे ये एडीएफ है, मेरे इस एडीएफ को कनेक्ट करना है मेरे डेटा लेक से, और डेटा लेक को कनेक्ट करना है डेटाबेस से। अब सारा काम, ये सारे कंपोनेंट्स मेरे एक ही टूल के अंदर यूज हो रहे हैं, तो बहुत इजी है, बहुत इजीली इसको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो करेंगे इसके ऊपर आराम से डिस्कस। आई थिंक टाइम इज अप फॉर टुडेज क्लास। ठीक है, एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस और वी कैन स्टॉप द सेशन नाउ। ठीक है, अभी तो कोई डाउट नहीं है अनुराग। ओके फिर ठीक है, नेक्स्ट क्लास से ये पीपीटी जो आपने बनाई है नोटपैड में, ये शेयर हो जाएंगी ना? हाँ, मैं शेयर करवा दूंगा। यस, ठीक है। वैसे बहुत ही रफ है, पर मैंने ठीक है इसको थोड़ा और बेटर वे में रिफाइन करके फिर मैं शेयर करवा देता हूँ। ठीक है, ओके ओके नेक्स्ट क्लास से थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल पे भी आएंगे। ओके। तो पहले अपन एजोर ही कवर करेंगे ऐसा? नहीं, आई थिंक अभी क्लास आप लोगों की होगी ये विशाल के साथ, वो आपको सिक्वल और पाइथन पूरा कवर कराएंगे, फिर मैं वहाँ से ये सारा मैं कवर करूँगा। कितना टाइम लगेगा सीक्वल पाइथन में? ये आई थिंक वही बताएंगे विशाल से, या फिर एक बार आप विशाल लाइन है। विशाल कितना टाइम लग जाएगा वैसे सीक्वल पाइथन को कवर करने में? Approximately 1 month for both. और विशाल, आपका एक्सपीरियंस क्या है पाइथन में? I have approximately 10 plus year experience as a data scientist. So recently I'm working with the company. ओके, ठीक है। Yeah. ओके। Okay. Any other question, guys? नो। Okay. So Manoj, one question is there. आप full stack में हो, right? हाँ, एक्चुअली मैं फुल स्टैक में हूँ, लो कोड प्लेटफॉर्म आउट सिस्टम पे। Okay. तो वहाँ पे लाइक सीक्वल और जावास्क्रिप्ट ही यूज होती हैं बेसिकली प्रॉपर कोड में, बाकी ड्रैग एंड ड्रॉप से ही होती है सारी चीज़ें। Okay. So do you have any experience with the programming language? नहीं विशाल, मेरे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं। इनिशियली मेरा 6 महीने का है एक्सपीरियंस, Mm-hmm. पर वो मैं इंक्लूड नहीं करता हूँ कभी। Okay. हाँ, बट मुझे पाइथन मैंने करके रखी हुई है ऑलरेडी। पाइथन और सीक्वल मतलब आप मान लीजिए मैंने समथिंग 30 to 40% जो यूज होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेरी यूज नहीं होती हैं आउट सिस्टम पे। ठीक है, Okay. जो जो बेसिक क्वेरीज हैं मैं वो करता हूँ, वो ऐसा है। Okay. So I have some questions like अगर आपने Python prepare किया हुआ है, right? So do you have any idea about collection part? Like अगर मैं बात करूँ data structure part. लिस्ट, मैप, लिस्ट हो गया है ना, और टपल हो गया, सेट हो गया और डिक्शनरी, यही 4 मैंने करा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करा है। के अलावा नहीं होता है। एंड यू नो अबाउट दी फंक्शन, ये सारी चीजें आपने स्टडी विशाल, ये सारी चीजें क्लियर हैं क्योंकि कोर मेरा जो था वो C++ था कॉलेज में। हाँ, कॉलेज में। और जावा भी करा हुआ है। तो मैंने पाइथन जब पढ़ी W3 स्कूल से, तो मैंने उसको अच्छे से ही करा है, मतलब जो W3 में जो सिलेबस था, ओके, हाँ वो अच्छे से ही करा है मैंने पाइथन। ठीक है, नाइस। एंड फिर तो इक्वल आई थिंक ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि क्या है, प्रोग्रामिंग अगर आपका बैकग्राउंड है ना, तो दैट वन इज इजी, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज इन दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज दी लॉजिक। ओके, तो अनुराग जो अभी पूरा कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर कर रहे थे, उसके पीछे पूरा कंप्लीट लॉजिक वर्कआउट करेगा। इफ यू आर गुड इन प्रोग्रामिंग, so you can easily build up logic. ओके Correct? ओके। तो वो टास्क आपको नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि आपका कुछ बैकग्राउंड है प्रोग्रामिंग का। दैट वन, दिस वन इज वेरी इजी फॉर मी, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो टेक्निकली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ऑन अ इजी गोइंग पे। ओके ओके। बाकी इफ यू have some issues with mathematics and programming concept like syntax and all these things, so we'll share you some assignments on a basic level. ओके ओके। ठीक है,
मैं आपको स्टार्टिंग में 4 to 5 शीट्स है मेरी, अप्रॉक्सीमेटली 150 समथिंग क्वेश्चंस हैं फॉर द बिगिनर पर्सन। जैसे आपका Okay. भी स्टार्टिंग है, सो यू कैन गो थ्रू दैट। और जब मैं पाइथन स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको शीट शेयर कर दूंगा, अप्रॉक्सीमेटली 30 50 60 समथिंग क्वेश्चंस होते हैं उसमें, एंड इट्स वेरी बेसिक स्कूल लेवल क्वेश्चन। तो उससे क्या होता है ना, सिंटैक्स वगैरह एंड एवरीथिंग इज गुड फॉर यू। तो वो सारी चीजें आपका हैंड्स ऑन हो जाएगा, हाथ सेट हो जाएगा। देन ठीक वी है, मूव सही है। कॉम्प्लेक्स, ओके। तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है, ठीक है। ओके। ओके, ओके मनोज, थैंक यू, ओके, ओके, ठीक है। बाय थैंक यू मनोज, थैंक यू विशाल। थैंक यू। बाय।